marriages, what is there? The boy and the girl have been friends from so long time. So mutual understanding is there between them, and वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, and they have taken this decision after a very long time understanding each other. So no kind of fraud system is there. I want to explain this, like in arranged marriages, we don't know the boy and the girl, and sometimes the family also like झूठ बोलती है कि our boy does this, our girl does this, and after marriage it cannot be like denied, it cannot be cured कि अब कुछ नहीं हो सकता, हो गया है. They both have to compromise with each other. Also in some systems, in arranged marriages dowry system hota hai, but in love marriages the both parties know each other from very long time and they have been friends. ऐसा कुछ नहीं होता है. दे ऑपोजिट वाले जो भी बॉय और गर्ल है एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. दे वैल्यू ईच अदर एंड इट्स काइंड ऑफ अ सेल्फ सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है, बिकॉज they have been knowing each other, following each other, understanding each other, time spent किया होता है, and they have make lot of plans before marriages that we will do this and this, and higher chance of success होता है, because first thing is first, they उन लोगों में friendship होती है पहले तो. कोई टाइप का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है, because in arranged marriages the girl don't know the boy also, so sometimes if boy खड़ूस निकला और रूड निकला, the girl had to only cry and cry. बट लव मैरिजेस में बॉय उसको जानता होता है, सो एटलीस्ट वो उसको बैकअप करता है, मतलब एटलीस्ट वो उसको संभाल लेता है पीछे अगर कोई उसको ना बुलाए तो. ऑल्सो एक कमिटमेंट होता है, दे बोथ नो ईच अदर्स वैल्यूज कि उसको क्या चाहिए, व्हाट आर हिज चॉइसेस एंड व्हाट आर हिज फेवरेट थिंग्स, उसको कैसे हैप्पी करना है. अगर वो सैड है तो दैट थिंग्स आल्सो गोज वेल. इन अरेंज मैरिजेस समटाइम्स बॉय और गर्ल में बीच में फैमिली ज्यादा आ जाती है, और फैमिली के कारण उनका जो रिलेशन होता है, जो चलना होता है, वो भी खत्म हो जाता है. सो एक थिंग ऐड करना चाहूंगी, अगर शादी करनी है तो प्यार करके करो ना. लव शादी करके फिर प्यार क्यों करना. ऑल्सो लव मैरिज इज काइंड ऑफ अ ट्री. उसके रूट्स जितने डीपर होंगे उतना वो लॉन्ग लास्टिंग होगा. सो इन लव मैरिजेस दे बोथ नो ईच अदर फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, सो वो तो होना ही है, मतलब लव मैरिज तो सक्सेस होनी ही है, मतलब होगी. Also, I want to share a quote: never marry a person with whom you can live with. Always marry a person with whom without whom you cannot live with. Okay? So understanding होती है, choices और preferences होता है. They both value each other because they have been knowing each other from so long time. Also financial problems में भी they can both understand each other कि हाँ ये होता है. And the very most important thing I would like to add कि in love marriages we can choose our the other party जो हमको हमारे profession में हो, like our profession, we can match our profession and we can choose from that. Instead in arranged marriages that is not the case. हमको जो मिला we are accepting that. In arranged marriages में गर्ल और बॉय का तो कोई होता ही नहीं है. इफ फैमिली इज लाइक देन इट्स ओके. फिर पता नहीं फैमिलीज मतलब आगे चल के नहीं हो तो फैमिली इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, लाइक दे बोथ हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर. सो आई थिंक लव मैरिज इज बेटर than arranged marriage. I am not denying that arranged marriage doesn't work, but if we see the points that I have covered, love marriage lasts. I think it's good. Thank you. Okay, let me tell you, Indian culture is not about marriage of two persons, but it's about two families getting married. So, if this is the case, by arranged marriage is the ultimate option, I'll tell you. सेकेंड थिंग एज द ऑपोजिट टीम सेड कि यार हमें तो जो मिला उससे चलाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता. वी आर गिवन एन नंबर ऑफ चॉइसेस. आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए. पेरेंट्स और फैमिली विल ऑलवेज आस्क यू कि बेटा कैसी लड़की चाहिए, कैसा लड़का चाहिए, क्या चाहिए उसमें तुम्हें. ओके, एंड द फैक्ट इज यू कैन ऑफिशियली रिजेक्ट कि नहीं ये मुझे नहीं पसंद है, ना चले भाई ना चले, एंड योर फैमिली विल सपोर्ट. द सेकेंड थिंग इज आफ्टर गेटिंग मैरिड योर इन लॉज कैन नॉट ब्लेम यू कि भाई तुम्हारी चॉइस थी तुम भुगतो. अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा ना. यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन. इट्स अबाउट हाउ यू एडजस्ट, हाउ वेल यू कैन बी विथ ईच अदर, एंड जो है यू हैव टू लिव विद देम, एंड देन यू गेट इनफ टाइम. ओके, जो आप लोग कह रहे हैं कि भाई टाइम नहीं मिलता है जबकि लव मैरिजेस में टाइम मिलता है, दैट्स अ रॉन्ग थिंग.
एक बार आप एक दूसरे को देखते हैं, देन यू गो आउट, यू गो समवेयर, दैट इज द ऑफिशियल डेटिंग विथ योर पेरेंट्स परमिशन. So you go out, you spend time, and once you अब एक दूसरे को अच्छा लगने लगते हैं, then you get engaged. And after engagement, that's the golden period. साथ में shopping करना, साथ में movie जाना. You don't have to play that hide and seek game. आपको जाना है, मूवी देखने जाओ, ये करो, फैमिली के साथ शॉपिंग में जाओ, इन लॉज बुला रहे हैं, वहां पे फंक्शन है, वहां पे जाओ, वहां से यहाँ आएंगे, यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे एंजॉय करो. So that is the all thing in the arranged marriages. If you like surprises, arranged marriages are full of surprises, as said by one of my team member. So also when a family chooses something for you, there is no chance, very less chance of fraud, because आपकी फैमिली सामने वाले लड़की है या सामने वाला जो लड़का है उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करती है, उसकी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड चेक करती है. स्पेशली इन केस ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के पेरेंट्स हमेशा बहुत ध्यान से चेक करते हैं बैकग्राउंड, देखते हैं कि कैसा है सामने का बैकग्राउंड, वहां पे माहौल क्या है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दो कल्चर एक ही है, सो यू डोंट हैव टू एडजस्ट सो मच. भाई बोलने में अभी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ एडजस्ट कर लेंगे, बट 24/7 जब आपको रहना पड़ता है ना, तो आपके फूड हैबिट्स, आपके कल्चर्स, आपके रिलीजन थिंग्स, हर चीज उसमें आ जाती है. एंड देयर कम्स कि अरेंज मेंबर कितना कितना ज्यादा हेल्पफुल रहता है, बिकॉज यू आर ओके. अगर मेरे फैमिली का बिजनेस है और वहां पे भी सामने अगर किसी की फैमिली का बिजनेस है, तो यहाँ पे मैं हेल्प करती थी, वहां जाके मैं संभालूंगी. सो दैट्स वेरी इजी. फूड हैबिट, कल्चर बहुत सेम रहता है. You are comfortable to adjust with it. And in love marriages you have a certain perception. भाई कोई कुछ भी बोल देगा एंड आप मान जाओगे, बट अरेंज मैरिजेस में ऐसा नहीं होता, और वैसे भी प्यार तो अंधा होता है. So arranged marriage is much better option in that case. And डाइवोर्स के केसेस काफी कम हो जाते हैं इस केस में, क्योंकि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, यू कैन सिट टुगेदर, यू कैन सॉर्ट इट आउट. आपके पेरेंट्स से, सामने वाले के पेरेंट्स से, पूरी फैमिली है, कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे. यू नो दैट आपके पेरेंट्स खुश है, आपकी फैमिली खुश है, इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती है. एंड एज स्वाति सेड कि पहले प्यार करके फिर शादी करो, बाद में शादी करके क्यों प्यार करना है. लेट मी टेल यू, जरूरी नहीं है कि सामने निशाना है, तीर टाक और निशाने पर जाएगा, लेकिन तीर टाकने के बाद निशाना बनाओ तो कभी नहीं छूटेगा. थैंक यू. It was great fun having the discussion. See, conclusion is simple. It is about people and their preferences and choices. If you're comfortable with somebody whom you know already, and if you find somebody like that, like so many times people want to enter into love marriage and do that, but then koi mila hi nahi. So then gradually you opt for arranged marriage. And it is not like that. In arranged marriage also you get good life partners. I've seen a couple of my family members and friends. In fact, most of our parents have got married in an arranged marriage system. And still they are happy. So दोनों में से कोई भी option लो आप, बैंड तो आपकी बजनी ही है. It's just that you learn to be happy with whatever you have. Nobody is perfect. Neither you are, not somebody else. It's just that adjusting with each other and understanding with each other. At the end of the day, you want a life partner who will help you, support you, and bear with you. Okay, so you should get married. And yes, live a happy life. And I wish you all get married to a right person. Whether it is love marriage or arranged marriage, let it be.